Hey students, welcome to my channel. I hope you have watched my videos, and if you are watching then please subscribe my channel because this channel will be very helpful for the students, especially for the students with commerce background, because I will be solving up CMST, yes, commercial mathematics and statistics, and this will be more helpful for the students who are from Guwahati, because I will be solving up the book written by Ajanta Majumdar and Runjhun Fukan, because this book is being followed by many students in Guwahati, and almost every student of GCC and KC Das Commerce College or any college in Guwahati, they follow up this book. So I will be solving up all the sums from this book, and if you will have any doubt, any confusion regarding any sum of this book, you can just ask me down and I will solve it for you guys. So just follow up my channel, subscribe it, and you will be able to solve each and every question of this book, and this will really be helpful for your board exams and you will be able to secure good marks. So just go ahead, watch my videos, subscribe it, and yeah, don't forget to share. This book is in two groups, Group A and Group B. Group A is of Commercial Mathematics and Group B is of Statistics. So we will solve Group A. First unit of this book is Introductory Mathematics. It consists of simple interest, compound interest and annuity. So first we will solve the part of simple interest. It is simple interest. And to solve this, you just need to know three things. That is principal, rate of interest and time. And to solve this chapter, you just need to know two formulas. Number one is SI is equal to P into R into T by 100. And number two is amount is equal to P plus SI. Just learn this two formula and you will able to solve every question. So the first question is, find the simple interest as well as amount on rupees 10,000 for 6 years 3 months at 8% per annum. So आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको अमाउंट भी निकालना है. सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ना, आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. तो यहाँ आप लोगों को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी. तो जब भी आप लोग कुछ सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ध्यान दो कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमेशा लिख लिया करो. गिवन क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 10,000, टाइम इज इक्वल टू 6 years 3 months. तो आप लोग ध्यान दो, ये जो टाइम है ये है 6 years 3 months, लेकिन टाइम हमेशा हमेशा होना चाहिए ईयर में. तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ईयर में. तो कैसे करोगे, 6 तो ऑलरेडी ईयर में है तो 6 रहने दो, और 3 months को कन्वर्ट करना है ईयर में तो आप लिख सकते हो प्लस 3/12. अब 3/12 क्यों, बिकॉज एक ईयर में 12 months होता है. सो वी कैन राइट इट 3/12. आप यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हो. तो 3 1 से 3, 3 4 से 12, 6 प्लस 1/4. अब आप इसे सॉल्व कर लो. इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 6 4 से 24 प्लस 1/4, 25/4 years. ओके. अब रेट लिख लो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% पर एनम. वी नो, आप लोगों को क्या पता है, SI इज इक्वल टू
P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P की जगह आप लोग लिख लो 10,000, R की जगह लिख लो 8 और टाइम की जगह लिख लो 25/4। 100 है नीचे, सो 100। अब आप कैंसिल कैसे करोगे? तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो गया। 4 1 4, 4 2 8। तो आप 100 इंटू 2 इंटू 25 करना है आप लोगों को। तो 100 इंटू 2 इंटू 25, 25 2 50 एंड 50 इंटू 100 इज 5000। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आप लोगों का? ₹5000। तो आप लोग लिख लो द SI इज ₹5000। और आप लोगों को क्या निकालना है? अमाउंट भी निकालना है। सो नाउ लिख लो आप लोग और उसके बाद लिखो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था आप लोगों का? ₹10,000 प्लस SI कितना था? 5000। टोटल कितना हो गया? ₹50,000। दैट मीन्स उसे अमाउंट कितना मिल रहा है आफ्टर इंटरेस्ट? 15,000 रुपए से मिल रहे हैं। So the next question is ₹7,200 from 18th Jan 1987 to 27th March 1987 at 5% per annum। अगेन आप लोग गिवन लिख लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? P is equal to ₹7,200, टाइम इज इक्वल टू, ओके टाइम में इस बार चेंज है क्योंकि टाइम ना तो ईयर में है और ना तो मंथ में है। ये क्या है? डेट में दिया हुआ है। 13th Jan 1987 to 27th March 1987। अब आप कैसे करोगे इसको? तो आप लोग लिख लो कौन से मंथ आ रहे हैं। तो जनवरी कवर कर रहा है, ये फरवरी कवर कर रहा है और मार्च कवर कर रहा है। ठीक है, जनवरी में ये कितने दिन कवर कर रहा है? तो स्टार्ट होता है ये 13th से, तो पहले के दिन ये कवर नहीं कर रहा। तो 31 माइनस 13 कर दो। 31 बिकॉज टोटल डेज इन जनवरी इज 31। उसके बाद फेब में आप देखो फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28, 29 भी हो सकते हैं अगर वो लीप ईयर हो। तो आप लोग ईयर में चेक कर लेना कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 और अगर लीप ईयर है तो 29। और मार्च में कितने डेज ये कवर कर रहा है? 27। ओके, सो 31 माइनस 13 करो आप लोग, आएगा 18 प्लस 28 प्लस 27। तो 18 प्लस 28 प्लस 27 होता है आपका 73 डेज। लेकिन मैंने क्या बोला था? टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? ईयर में होना चाहिए। तो इसको आप ईयर में कन्वर्ट करो। तो 73/365 बिकॉज 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग लिख लो जो कि है 5%। अगेन वी नो, सो व्हाट यू गाइज नो कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। P की जगह आप लोग लिखोगे 7200, R की जगह 5 और टाइम की जगह 73/365। आप लोग इसको ही बड़ा करो और 100। 0 0 गया। ठीक है, अभी आप किसको काट सकते हो? 5 और 365 को। तो 5 की टेबल से काटो। 5 5 7 5 और ये 73 आ गया। ये 73 और ये 73 भी गया और आपका इंटरेस्ट आ गया 72 रुपीज। ठीक है, SI इज ₹72। अभी आपको अमाउंट भी निकालना है। सो नाउ अमाउंट इज इक्वल टू
P प्लस SI। सो P कितना था 7200 और SI कितना है 72। तो अमाउंट आएगा ₹7272। Now the next question is ₹8400 for 3 years 9 months at 5.1/2% per annum। So फिर से आप लोग लिख लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है given P is equal to ₹8400, time is equal to 3 years 9 months। बिकॉज आपको कन्वर्ट करना होगा तो 9 को क्या लिख सकते हैं 9/12। कैंसिल कर दो, आया 3 प्लस 3/4। सॉल्व करो इसे, 3 4 12 प्लस 3/4 आया आपका 15/4 years। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1/2% पर एनम है। इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो, 5 2 10 प्लस 1 11/2% पर एनम। ओके, अभी आप लोग करोगे वी नो SI is equal to P into R into T by 100। P की जगह आप लोग लिख लो 8400, R की जगह लिख लो आप लोग 11/2 और टाइम की जगह लिख लो आप लोग 15/4। इसको बड़ा करो इंटू 100। ठीक है, अब कैंसिल करो 0 0 0 0। ठीक है, 4 से आप कर सकते हो इसको इजीली, 4 2 8 4 1 4। और किसी को आप कर सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते तो आप मल्टीप्लाई करो 21 into 11 into 15 बाई, इसे कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 1732.5। तो आप लोग लिख लो द SI is ₹1732.5। अब आप लोगों को निकालना है अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P है आपका 8400 और SI है 1732.5। तो आपका अमाउंट कितना आएगा, एड अप करो आप इसे, तो आंसर आएगा आपका 10132.5 यानी कि ₹10,132.5। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो मेरी बाकी वीडियोस भी आप लोग देखें, और इसके आगे के सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की वीडियोस को देखो।